Hello guys, again welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about Gen AI agent and the agentic AI. So basically, the what is the main difference between these three of them we are going to discuss in today's video. So let's discuss what is generative AI. So generative AI creating a new content based on your prompt. So basically first we give the prompt and then we get and model produce a new content for us, like it may be a text, image, or a code for a learning. And basically it's learned from the pattern of data. Then if we talk about the AI agent, so AI agent instead of only the generating the content or text, it perform a action like decision making and the act towards a specific goal. And if we talk about the agentic AI, so agentic AI is the next level of the AI agent. So consists of an multiple intelligent agents that can be plan, reason, coordinates, and the adapt and work towards a goal with a minimum human need. So, so AI agent basically is, it has prompt engineering, LLM fundamentals, and we use the RAG and the embedded for basically these are the tools and the technology we use. And basically the large language models are like GPT, Claude, and the Gemini, Chat GPT, which we are using right now. And for the if we talk about the image and the videos, that is the stable diffusion and the mid journey and the prompt engineering frameworks होते हैं हमारे पास, and the fine tuning and the rag pipeline for the grounding outputs. And generative AI is work on the trained data and the patterns which we have predict. And if we talk about the AI agents, so the AI agent tools and the technologies are the tool calling, function calling, APIs, memory. The memories are like short term memories it contains, and the frameworks like LangChain, Llama Index, and the React patterns, and the vector database for the short term and the contextual memories. And it is also AI agent is basically a task specific प्लगइन्स होती हैं जिसमें हम सर्च के लिए हम कोड एग्जीक्यूशन कैलेंडर्स और ए CRM का हम यूज़ कर सकते हैं, टास्क स्पेसिफिक होती है। अगर हम एजेंटिक एआई की बात करते हैं तो एजेंटिक एआई में इसके टूल्स हमारे पास जैसे होते हैं कि इसमें मल्टीपल एजेंट सिस्टम्स होते हैं, फिर हम इसे प्लानिंग एंड द रीजनिंग की बात कर सकते हैं, एंड द एग्जीक्यूशन लॉन्ग रनिंग वर्कफ्लोज होते हैं, एंड द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, दैट इज़ द MCP एंड द ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. So the comparison between these three of them are, that is, first if we talk about the generative AI. So in generative AI, the core role of generative AI is the content generation, and AI agent is the task execution, and the generative AI is automation. Memory for the generative AI is the per सेशन, एंड वेयर एज द AI एजेंट के लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म की होती है एंड द कॉन्सेप्चुअल होती है. वेयर एज अगर हम एजेंटिक AI की बात करते हैं इसमें लॉन्ग टर्म होती है एंड द परसिस्टेंट होती है. अगर हम टूल यूज़ की बात करते हैं, रेयरली हम जनरेटिव AI के लिए कोई भी
अलग से टूल यूज़ करते हैं, वेयर एज जबकि हम इसमें क्या करते हैं कि सिर्फ हम प्रॉम्प्ट देते हैं और डायरेक्टली हमारे पास सिंगल लाइन का प्रॉम्प्ट दिया तो सिंगल लाइन का हमारे पास आउटपुट आता है। ठीक है, वेयर एज अगर हम एआई एजेंट की बात करते हैं उसमें तो हमारे पास कॉल स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, एपीआईज का यूज़ करते हैं, डेटा बेसिस का, वेक्टर डेटा बेसिस का हम यूज़ करते हैं। And in the agentic AI coordinates many tools and the agent are used। एंड प्लानिंग की बात करते हैं जनरेटिव एआई में तो कोई भी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वे और ना डिसीज़न की ज़रूरत होती है कि वो खुद से डिसीज़न लेता हो। वेयरएज अगर हम एआई एजेंट की बात करते हैं उसमें सिंपल डिसीज़न एक्ट होता है एंड द लूपिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि वो जो भी हम टास्क करवा रहे हैं वो लूप में कंटिन्यूस वे में होता रहता है जब तक टास्क कंप्लीट ना हो जाए। और एजेंटिक एआई इज़ द मल्टीपल स्टेप प्लान्स होते हैं, उसको रीप्लान करना अगर कोई प्लान फेल हो जाता है, सो ये भी यहाँ पर लूप वाला ही होता है। अगर हम ह्यूमन रोल की बात करते हैं सो जनरेटिव एआई में तो प्रॉम्प्ट राइटिंग का होता है मेन यूज, एंड एआई एजेंट में बेसिकली सबसे पहले तो हमें सिर्फ गोल सेटर चाहिए होता है एंड द सुपरवाइज़र की नीड होती है कि उसको सुपरवाइज करे कैसे वो एआई एजेंट हमारा वर्क कर रहा है। देन जन एजेंटिक एआई में क्या होता है कि ओवरसीलर एंड द स्ट्रैटेजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ऑफ जनरेटिव एआई तो टेक्स्ट के लिए इमेज जनरेशन की बात कर सकते हैं, एंड द एआई एजेंट के लिए हम सपोर्ट चैटबॉट बना सकते हैं। द जनरेटिव एआई में मल्टी एजेंट प्रोजेक्ट टीम बना सकते हैं। सो अगर हम इसकी वर्क फ्लो की बात करते हैं कि कैसे इसका वर्क फ्लो होता है तो चैट जीपीटी का लाइक अगर जनरेटिव एआई की बात करते हैं तो नॉर्मली प्रॉम्प्ट दिया जाता है एंड देन फिर वो आउटपुट देता है। लेकिन अगर हम एआई एजेंट की बात करते हैं उसमें हम पहले यूज़र गोल सेट करते हैं, देन अंडरस्टैंड द टास्क एंड देन प्लानिंग स्टेप्स होते हैं उसके कुछ, एंड फिर कौन सा टूल हमें यूज़ करना है वो सारी चीज़ें होती हैं, मेमोरी देना होता है उसको शॉर्ट टर्म, एंड देन एपीआई एंड द ब्राउज़र एंड द डेटा कौन सा वर्क कर रहा है, एंड देन फिर वो रिटर्न करता है हमारा रिजल्ट को। वेयरएज अगर हम एजेंटिक एआई की बात करते हैं उसमें हमें गोल हमें देना होता है एंड देन फिर प्लानिंग करते हैं उस टास्क के बारे में, उस गोल के बारे में, एंड देन रिसर्च आता है एंड फिर वो डिसीजन मेकिंग करता है कि कौन सा टूल हमें यूज़ करना है, एंड इवैल्यूएशन पार्ट होता है एंड देन फिर वो रिज़ल्ट को इवैल्यूएट करता है कि वो सही रिज़ल्ट है या नहीं, एंड देन फिर कंप्लीट रिज़ल्ट वो हमें देता है। एंड द सेल्फ करेक्शन होता है एजेंटिक एआई में, वेयरएज जो हमारे पास बाकी दो हैं जिसमें जैसे कि हमारे पास जनरेटिव एआई और एआई एजेंट में इसमें कोई सेल्फ करेक्शन नहीं होता है, इसमें ह्यूमन की नीड होती है बेसिकली करने के लिए। सो की टेक अवेज की हम बात करते हैं कि जनरेटिव एआई एक फाउंडेशन होता है बेसिकली। अगर हमें एआई एलएलएम इंजीनियरिंग या फिर एआई इंजीनियर की बात करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम फाउंडेशन के लिए जनरेटिव एआई इज़ द मेन फाउंडेशन ऑफ दिस, एंड देन फिर हमारे पास एआई एजेंट आता है जिसमें हम ऐड करते हैं टूल्स को एंड डिसीजन लूप्स जो भी हमारे पास टास्क स्पेसिफिक होते हैं एआई एजेंट। और फिर हमारे पास थर्ड लेवल हमारा जो आता है एजेंटिक एआई का आता है। ठीक है, उसमें हमारे पास बहुत सारे एजेंट प्लानिंग कोलैबोरेटिंग एंड टूवर्ड्स गोल के टूवर्ड्स वो होते हैं। ठीक है, एंड फिर बेसिकली अगर हम एजेंटिक एआई और एआई एजेंट की बात करते हैं उसमें ह्यूमन की नीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एजेंटिक एआई में, क्योंकि वो मिनिमाइज़ करता है सारा वर्क यूजिंग द, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एआई एजेंट का हम यूज़ करते हैं। सो for today's video that's it, and in next video we will meet, and if you have any doubt let me know in the comment section. For this video, thank you and have a nice day.